Hello to everyone. This is Paridhi from DU Vibes, and I welcome you all to Gupshup with DU Vibes. And today we have Shakti Arora with us. So, hi Shakti. Hi, Paridhi. How are you? Hi, all the people from Delhi University. Okay, Big hi so to all of you. I am good. And first of all, congrats for your new song, Ishq Nibhava. And I Thank you so much. grew Thank it like anything. I just put it like, oh, Ishq Nibhav, where is it? In my stories also, I just put this song, because the main line is so good, and I am so you. addicted to that Very line. catchy. Exactly. Thank you so much. You do that. It's really kind of you, and I'm very happy you do that. Actually, even I do that. From a lot of my stories, I put that particular song because I actually love it. Yeah, exactly. मतलब this अलग ही वाइब नहीं होती है वो सॉन्ग की, जिसमें हम लोग Yes, एक अलग yes. सा कनेक्टिविटी बन जाता है उस सॉन्ग से. So connected a Feel good lot. vibe है उसकी. Exactly. Yeah, In this era where remixes are there, finally I find it right. some songs that there are real and they get some connectivity with the real audience. Yeah. Yes, yes. Yeah. Okay. Okay, so first of all, my question is very common. While Okay. shooting for the Ishq Nibhava, what were the Mhm. main things behind the scene that you loved it and you are still missing those days? uh, Actually, जब मैं शूट कर रहा था चंडीगढ़ पंजाब में, तब हम लोग बहुत छोटी छोटी गलियों में शूट कर रहे थे। वहां पे मतलब वैनिटी वैन्स जाना या फिर बसेस जाना वाज नॉट पॉसिबल। सो वो जो छोटी छोटी गलियां थी और जो हमारी जो स्टोरी भी थी वो स्मॉल टाउन से रिलेटेड थी। सो जैसे ही मैंने लोकेशन देखी, मतलब मुझे ऐसा लगा कि दिस इज द एप्ट लोकेशन फॉर द सॉन्ग। एंड the story is also like that, where the boy comes from a very small town family, and even the girl is from a small town family, and how they fell in love with each other, और कैसे उसे जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप को, जो कि आजकल के टाइम्स में बहुत डिफिकल्ट होता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। तो मैं तुम्हारे चेहरे के हाव भाव समझ सकता हूँ। तो बहुत सारे लोगों ने उस चीज से दे हैव गॉन थ्रू। सो या दैट्स व्हाट वी हैव ट्राइड टू डिपिक्ट इन द स्टोरी। And the whole experience of shooting the song was amazing. The small nuances that we incorporated in the song, the story, were fabulous actually, because I've done many songs, but इतना डिटेलिंग में हमने कभी किसी कोई स्टोरी में इतना काम नहीं किया तो इस स्टोरी में काम किया। एक एक छोटे छोटे नुएंसेस इंस्टेंसेस हमने उसमें डाले। और वो एक वो नजर आ रहा है कि वो एक स्मॉल टाउन स्टोरी है। लड़का भी मतलब एक साड़ी की शॉप में काम करता है, साड़ियां बेचता है, और लड़की पढ़ाई कर रही है। वहां पे वो देख रही है कि भाई मतलब लड़के कितने आजकल कैसे होते हैं, फ्लिम्बॉयंट और प्ले बॉय काइंड ऑफ होते हैं। तो उसको शक होता है कि शायद मैं भी कहीं वैसा ना हो जाऊं। लेकिन फिर वी आर रेगुलरली कॉलिंग ईच अदर, शी इज बिजी इन हर स्टडीज, आई एम बिजी इन माय ओन वर्क, बट स्टिल वी आर टेकिंग आउट टाइम फॉर ईच अदर। So these instances, when I was playing it, I was really enjoying it because it was more real, more relatable, and उसमें एक्टिंग जैसा कुछ था नहीं एक्चुअली। बहुत ऐसे रियल रियल हमने सब कुछ किया, तो Yeah. मुझे वो करने में बहुत मजा आया, मुझे बहुत सेटिस्फाइड हूँ। A story that is attracted from the real life. राइट। Yeah. Okay. Okay. So yeah, actually, that's what people want. That there should be songs that people can relate with them. It's not about all the time the clubs and the lights that's falling on them. It's about that राइट। how the common people can relate it with, and that's what we हम्म। need. I think. Yeah. या Okay. वही अच्छी लगी मुझे एक्चुअली चीज। जब मैंने सॉन्ग सुना तो मुझे एक ही बार में मुझे काफी कैची लगा, मुझे एक ही बार में आई स्टार्टेड हमिंग। तो मुझे लगा ये तो सॉन्ग तो बड़ा अच्छा है यार, इसको कर सकते हैं। फिर व्हेन आई हर्ड द स्क्रिप्ट, तो मुझे स्क्रिप्ट भी बड़ी प्यारी लगी। और फिर मैंने टीम और प्रोडक्शन हाउस वगैरह सब कुछ देखा, तो दे वर ऑल वेरी नाइस एंड वेरी पैशनेट अबाउट मेकिंग दिस वीडियो। So when a team of passionate people join together, you know tend to bring out a good product, which has Exactly. happened, Yeah. and we are seeing that in the number of views too, which is organic. So I'm happy that people are liking the song. There are so many reels which people have made upon the song, Yeah. so which is also
quite flattering. So I'm happy. Exactly. Okay. So, journey as a, you are Shakti Arora is a big name, okay? Everyone knows that who is Shakti Arora. Even when I put a story, my sister was like, "Oh my god, it's Shakti Arora, I want to meet him and all." So I was like, "Okay, you know him, that's good." So, Shakti Arora is a big name, and obviously, this name has not come in a very easy way. You must have faced many things, yeah? You are a self made actor. So, can we know about some glimpse of your journey? Okay. So I started as I was working in a call center before coming into acting. I was Oh, working in a travel agency. I was working as a salesperson. So I did all the small jobs before coming into the industry. And मतलब मैंने इंडस्ट्री को सेकंड ऑप्शन रखा था बिकॉज मुझे ऐसा लगा था कि एक प्रोफेशन अनसर्टन है, कभी मिलता है काम, कभी नहीं मिलता, यू डोंट नो, इट टेक्स लॉट ऑफ exactly. टाइम टू मेक अ नेम, एज यू सेड. सो आई वाज सर्चिंग फॉर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज एंड फिर मैंने अपने आप को एक साल दिया कि चलो एक साल देते हैं, देखते हैं किस तरीके से जाता है करियर. और आई केप्ट गिविंग ऑडिशंस, लेकिन कुछ डाल नहीं गई कहीं पे भी. और ऐसे छोटे मोटे रोल्स मिले. फिर उसके बाद मैंने फिर कोई है वगैरह कुछ सीरीज आती थी, एपिसोडिक्स आते थे, तो वो सारे Okay. किए मैंने. फिर बाबू मुझे मिला, तो बाबू में एक ensemble कास्ट था, तो वहाँ पे मैंने काफी कुछ सीखा एक्टिंग के बारे में. फिर ऐसे छोटे छोटे रोल्स बहुत सारे किए मैंने अगले जन्म, ये छोटे छोटे मतलब cameos and all, because it was a learning process for me. So I never said no to any role, but I made sure that that role has a meaty presence in the whole series, where I can prove my mettle. So मुझे भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं था अपने आप पर कि मैं इस तरीके से आगे बढ़ूंगा, बट लोगों ने मुझे they kept on appreciating for my work when I realized that people are liking my work, so I should probably concentrate on my craft more than my looks or anything of that sort. So when I concentrated on that, then I kept on getting those kind of roles जहाँ पे actor का एक graph हो, you know, जहाँ पे एक performance oriented role. So that's how I got Meri Ashiki also, and then Silsila, and then I did some dance reality shows like Nach Baliye, Jhalak. So वहां से भी थोड़ा सा मुझे recognition मिला. Yeah, it was a tough journey, I will say, but it was a process, and I enjoyed the drill as well. Ups भी आते हैं, downs भी आते हैं career. लेकिन I think it's all a learning process. When you're not working, also it's a learning process. When you're working, you're definitely learning something. Okay. So while you were doing the small roles in different shows, so you were doing some side based jobs Uh-huh. also? Uh, जब शुरुआती दौर में मैंने बहुत सारे जॉब्स किए. उसके बाद जब मुझे यहाँ पे काम मिलना शुरू हो गया था, तब मैं सिर्फ एक्टिंग पे कॉन्सेंट्रेट किया. उसके बाद फिर मैंने वो सारे काम, क्योंकि मैंने कॉल सेंटर में काम करके थोड़ा सा मूला बना लिया था, थ्रू विच आई कुड सर्वाइव. और एक्टिंग में पेमेंट्स बहुत लेट आती है, बहुत लेट आती है. टेलीविजन शोज में तो मतलब 3 3 4 4 महीने के बाद, 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद 4 5 6 महीने के बाद पेमेंट्स आती है, तो आधा आधा साल रुकना पड़ता है पेमेंट्स के लिए. सो द पेमेंट प्रोसेस इज स्टिल नॉट organized in our industry. I hope it does. This is the only drawback in our industry. But otherwise, the fame, the recognition, the adulation that you get is phenomenal. Yeah, exactly. Um, I just want to add one thing that the amount of love that people are giving you, I think the love matters the most, because when people are sharing the love on you, is the best feeling that you have ever felt, maybe. राइट. जैसे अभी आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और आपने कुछ अच्छा काम किया और आपको आपका बॉस अप्रिशिएट करता है, तो आपको अच्छा लगता है. बट वो आपके बॉस या फिर कलीग्स ही आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं. बाहर के इंडस्ट्री वाले बहुत कम अप्रिशिएट करेंगे. ओनली तब करेंगे जब आप एक बहुत ही अच्छे मुकाम पे पहुंच चुके हैं और पूरे इंडस्ट्री में. पर यहाँ पर ऐसा है कि हम जो भी काम करते हैं वो टीवी पर दिखता है, या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे दिखता है, ऑनलाइन दिखता है. तो वहां पे इमीडिएट अप्रिसिएशन या फिर वो डीफेम भी करते हैं. तो वो दोनों चीजें मिलती है हमें, तो उससे हम अपने आप को और इम्प्रूव कर सकते
So that's a good Exactly. part about our job. Okay. So now I'll be moving to some serious question. Um Yeah. in the COVID time, so previously also before the COVID times also, many people were suffering through mental health issues, like they were some Mhm. kind of depressed, or what they thought that it would be like it, but it doesn't. So they were just depressed from that, and they were struggling from the mental health issues. They were seeing Right. the psychiatrist, they were doing some meditations and everything. Okay, so the Right. mental health issue in the COVID times has took a very in the eyes of everyone now. Okay, Right. so what's your take on that? See, मेरा तो मतलब मानना है कि आप अपने आप को कभी भी खाली ना रखें. लेट योर माइंड वर्क ऑल द टाइम. और अगर आपके अंदर एक कुछ भी सीखने की अगर एक भूख हो ना, तो that always drives you and always keeps you, at the right track, I believe. पहले मैं ऐसा था जहाँ पे मतलब अगर मेरे पास कुछ है नहीं करने के लिए, तो I'll get bored. But now there is no one moment in my life where I'm bored. I'm I'm always keeping myself busy, no matter if I have work or if I don't have work. I have other passions or interests where I keep finding about them, where I keep learning about new things which I like. You know. Uh, so during the pandemic time also, um, I was busy like 13 to 14, 16 hours a day because I was learning new things. You know. So अब जैसे किसी भी चीज में अगर आपको इंटरेस्ट हो, आपको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट हो या आपको कोई भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो, जिसमें इंटरेस्ट होना चाहिए उसमें आप पैशनेट होने चाहिए, तभी आप उस चीज के पीछे जा सकते हैं. और फिर पैंडेमिक चल रहा है या कुछ भी चल रहा है, आपको यू विल नॉट गेट बॉदर्ड. बट इफ यू विल हैव एम्प्टी टाइम, इफ यू डोंट हैव एनीथिंग टू डू, और आप बस घर में बैठे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मैं बोर हो रहा हूँ, तो फिर बोर ही होते रहोगे और फिर नेगेटिव थॉट्स ही आएंगे. So I don't entertain or allow negative thoughts to you know come inside me. Even if I do, then I immediately switch and I tell myself that I will not let this sink inside me. भाड़ में जाओ, I'm doing my job, and I focus on that. So I think ये भी मैंने खुद this is my self innovation. That's what I've done. मैंने किसी से सीखा नहीं है, किसी को देखा नहीं है, but I have realized कि हाँ, ये करने से I'm quite at a good space within myself. So I think people should do that. People should try to follow their passion. ये तो बहुत फिल्मों में भी बोला गया है यार, but it's not easy कि आप passion follow करो, या फिर कि बहुत लोगों के पास तो passion होता भी नहीं, तो क्या करें. But you have to find out new interest, that intrigues you. You always have to be uh, inquisitive about things, to learn new things. That should be the agenda in your head. खाली नहीं रहने देना. अगर मेरे पास एक्टिंग जॉब है या नहीं है, मैं कुछ ना कुछ तो कर रहा हूँ, जिससे या तो मुझे 2 पैसे कमाने मिल रहे हैं या तो मुझे नॉलेज मिल रही है, which is equivalent. Hmm. Okay, so uh, तो थोड़ा heavy हो गया, I'm sorry about that. this topic is heavy. That's why I've put it in the very early questions, so that अगर बाद में माहौल थोड़ा Yeah, सही होना होगा तो हो जाएगा. Okay, right. so I don't want कि last में सैड सैड होके आप जाओ एंड बाय बोलो मुझे. ठीक है, तो इसलिए मैंने नहीं शुरू नहीं, में ही वैसा रख हो नहीं दिया रहा है. लाइफ. Okay, so the shows you have done, like सिलसिला बदलते रिश्तों का, मेरी आशिकी, so you were playing some character. Okay, so if you compare your character and your real self, what all differences or what all similarities you have? मैं रियल लाइफ में बहुत ही सिंपल और बेसिक और बोरिंग इंसान हूँ शायद. हाँ, जो Okay. सिनेमैटिक रोल्स जो मैं करता हूँ वो थोड़े से ड्रामेटिक, मतलब ओवर द टॉप, लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स होते Exactly. हैं. वो रियल लाइफ में इतना मैच नहीं करते, पर
एक बात मैं कहना चाहूंगा कि व्हेन आई एम प्लेइंग दोस काइंड ऑफ रोल्स फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उनकी क्वालिटीज मेरे में डेफिनेटली आ जाती है और मैं ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होकर इम्बाइब कर लेता हूँ। Okay. सो ऐसा बहुत बार हुआ है मेरे। और नेगेटिव चीजें भी होती हैं जो हम प्ले करते हैं, बट वो मैंने अभी तक नहीं लिया। वो नहीं लेता. बस You या only imbibe the positivity. You don't imbibe the या negativity. You are just like, just stay away. यस। Okay. Okay. So, now, you have hosted some shows also. Okay, you आई just हैव only होस्टेड tell me. ज्ञान गुरु। The Yeah, I've science hosted wala a show also. called ज्ञान गुरु, I think the science साइंस one विद ब्रेन also. कैफे। Yes. यस, उसमें मैंने बहुत सारे साइंस के एक्सपेरिमेंट्स किए। जितनी Hmm. साइंस मैंने स्कूल में नहीं पढ़ी थी, वो मैंने साइंस वहां पे मैंने पढ़ी। और बहुत Yeah. मजा आया। इट्स माय फेवरेट शो टिल नाउ, व्हाटएवर आई हैव डन टिल नाउ, जितना भी मैंने काम किया है, मतलब मैं हर इंटरव्यू में बोलता हूँ वो मेरा फेवरेट शो है, क्योंकि वो शो में जो मुझे क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन मिला है, मुझे आज तक उतना सेटिस्फैक्शन कहीं कहीं नहीं नहीं मिला। मिला बिकॉज होगा. द एक्सपेरिमेंट्स दैट आई डिड, या एक्सपेरिमेंट्स, हम लोग साइंस भी पढ़ रहे होते हैं, अगर मेडिकल कॉलेज में भी होते हैं, तो वो एक्सपेरिमेंट्स करने किसी को नहीं मिलते। नाइट्रोजन से, लिक्विड नाइट्रोजन से हमने ब्लास्ट सब किए हुए हैं, मारुति 800 उठाई हुई है, क्या क्या नहीं किया हमने, मतलब पानी पे चला हूँ मैं, दीवारों पे मैंने वॉक किया इसके, मतलब भलती भलती चीजें की हुई। और मुझे बहुत मजा आया था। 2 सीजन्स किए मैंने। Yeah. सो या दैट वाज द मोस्ट अमेजिंग एक्सपीरियंस। मेरे साथ राकेश बेदी जी थे, वेटरन एक्टर, तो उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। हाँ। Okay, so how was the journey as a host? Because when you are acting, you are just like, you are playing some character. But when you are hosting, it's a very different thing. Correct? राइट। एक्चुअली आई एम क्वाइट एन इंट्रोवर्ट पर्सन, राइट नाउ आई एम एम्बिवर्ट, बट तो मुझे अपने शेल से बाहर निकल के होस्टिंग करना मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट जॉब। मैं ऐसे एक ऑडिशन देने के लिए गया था, तो मुझे पता लगा कि वो लोग कुछ एक होस्टिंग शो का भी ऑडिशन कर रहे हैं। उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दे दी कि आप ये भी कर लो। तो मैंने बोला होस्टिंग होस्टिंग तो मुझे नहीं करनी है। फिर उन्होंने मुझे जब स्क्रिप्ट दी, मैंने डायलॉग डिलीवरी की, होस्टिंग की, तो उन्होंने मुझसे बहुत सारे टेक्स करवाए। उनको ये नहीं अच्छा लग रहा था, कुछ नहीं अच्छा लग रहा था। तो फिर मैं बहुत ऐसे इरिटेट सा हो गया कि यार मुझे मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मुझे नहीं करना। बट स्टिल वो जो ऑडिशन जो लेने वाला था, वो बहुत ही एडमेंट था। पता नहीं उसको क्या लगा मेरे में, उसको ऐसा लगा कि शायद ये कर सकता है, और उसने मुझे बहुत सारे टेक्स्ट कराए, 15-20 टेक्स्ट दिए, और बहुत ही स्ट्रेस्ड आया मैं। और मैं प्रे कर रहा था कि भगवान मुझे ये वाला शो बिल्कुल मत देना, मैं नहीं करता। इट वॉज अबाउट माइथोलॉजी। Okay. माइथोलॉजी से मेरा दूर दूर तक का संबंध नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता माइथोलॉजी था, मतलब। तो और मुझे 3 दिन के अंदर ही कॉल आ गया कि दैट यू सिलेक्टेड फॉर द शो, एंड आई वाज लाइक ओह गॉड, अब क्या करूंगा मैं, और तो फिर उन्होंने मुझे काफी ट्रेनिंग दी, मतलब 1 महीना तक उन्होंने मुझे सिर्फ होस्टिंग की ट्रेनिंग दी, क्योंकि उनको पता था कि मैं होस्टिंग में जीरो, कभी की नहीं मैंने होस्ट। तो पर वो शो काफी चला, इट यूज्ड टू कम ऑन एनडीटीवी इमेजिन, and it was a great experience to learn also so much about our Indian mythology, which I didn't know at all before. तो मैंने बहुत कुछ सीखा उस show से। फिर मैंने एक और शो किया, मन में विश्वास है। मन में है विश्वास. That's वो what I was remembering. या Okay. तो वो शो था फेथ के बारे Yeah. में, लोगों की जो विश्वास होता है अलग अलग भगवानों पे, किस तरह के विश्वास होते हैं, और उनके फेथ किस तरीके से काम करते हैं। तो अलग अलग स्टोरीज थी उनके ऊपर, और उनके फेथ ने उनको क्या क्या, मतलब माइलस्टोन्स पार करवा। So it was about that. Even that show was quite fabulous. I enjoyed a lot in that show. फिर मैंने बहुत सारे ऐसे शादियां भी होस्ट की हैं मैंने, संगीत फंक्शंस मैंने होस्ट किए। So, That's so great. but I've realized that my comfort space is in acting. I enjoy doing acting more than anchoring. I do anchoring also. अगर कुछ नहीं होगा तो, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो करता हूँ, बट आई एंजॉय एक्टिंग more than reality shows. Okay. रियलिटी शोज देखना पसंद है, पर करना पसंद है। Yeah, because it's difficult, in reality shows there are many prospects that you have to cover. Like you have to give content, you have to be someone. Even if you are not, you have to pretend that you are that person. What I think. मतलब Yeah. probably I feel कि आपका बैड साइड भी निकल के आता है, जो शायद आपने खुद ने नहीं देखा होगा। तो मुझे उस चीज से मुझे डर है, मुझे अपना बैड साइड देखना ही।
मुझे पता ही नहीं क्या है एग्जैक्टली इतना जितना बैड है मुझे पता है, लेकिन शायद मैं उससे भी अपना लेवल दे रहा था। तो वो चीज मैं ना मैं अपने आप से मैं झेल पाऊंगा ना, मैं चाहूंगा कि मेरी ऑडियंस वो मेरा गंदा साइड देखे। देखे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, कूल अगर इनफ। दिखाना ही है तो फिर मैं एक्टिंग के जरिए दिखाऊं। Okay, so that people can see, how he's playing the character. राइट, एब्सोल्युटली। Okay. More than enough, what I have seen in reality shows, whatever, the reality shows are, I have seen that, people with such a sweet and very sensible attitude, they are not, easily getting appreciated from the makers. You have to do some things that, entertain the audience, even if they are, just irritating for some people, but it's होता all. रियलिटी शो है, लेकिन आपको अनरियल बनना पड़ता Exactly. That's all about the TRP. How will you get the TRP? You have to do some drama, na? है। राइट, Okay. राइट। See, I have एंड not. इट इज नॉट माय कप ऑफ टी, फ्रैंकली स्पीकिंग। या Yeah. डेफिनेटली हैव लॉट ऑफ नॉलेज। Okay. ठीक है. So, okay. So you have, हाँ जी। referred that you have some hobbies, you have some things that you love and you do when you are free. So, what are those? Recently I've started developing some interest in economics, world economics, Okay. uh, mm, currencies, and Okay. different big topics like photography, gadgets. Okay. मुझे अगर कुछ भी चीज लेनी होती है तो मैं इतना रिसर्च मारता हूँ, इतना रिसर्च मारता हूँ उसके बाद कुछ ना कुछ मैं देखता रहता हूँ, या Mm-hmm. समझता रहता हूँ। कंपनीज जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, उनके उनके उन मतलब उनकी बैलेंस शीट्स देखता हूँ, और Okay. So you फंडामेंटल must be a एनालिसिस। commerce student. मतलब, balance sheet वही देख सकते हैं ज़्यादा अच्छे से. आई वॉज अ कॉमर्स स्टूडेंट बट आई नेवर हैड इंटरेस्ट इन दैट सब्जेक्ट। मुझे बस एडमिशन लेना पड़ा था क्योंकि मेरे पास कुछ और था ही नहीं, समझ में नहीं आता क्या करना है, लाइफ कहाँ जा रही है मुझे कुछ पता नहीं। बस एडमिशन मिला तो कर लिया बस। मतलब मुझे डेबिट क्रेडिट नहीं पता था वो जमाने अरे. में, बस मैं अकाउंट स्टूडेंट था। यस। Okay. तो मतलब लास्ट तक मुझे समझ में आता था कि यार ये डेबिट क्रेडिट होता है क्या, मुझे समझ में नहीं आता था, पता नहीं मैं कैसे पास Mm. हुआ, आई डोंट नो, बट द मार्क्स वर गुड सरप्राइजिंगली। सो मुझे कभी भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन पता नहीं सडनली मुझे इंटरेस्ट आ गया, सडनली आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर सम वर्ड्स, और फिर वो वर्ड्स मिलते मिलते पूरी एक स्टोरी बन गई, और फिर उसके बाद पूरा सब्जेक्ट ही अच्छा लगा। पूरा Mm. सब्जेक्ट के बारे में ही, मतलब मेरे घर पे इकोनॉमिक टाइम्स आता है, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं पढ़ता पर मैं इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ता हूँ, मैं बॉम्बे टाइम्स नहीं पढ़ता पर मैं इकोनॉमिक टाइम्स में, मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू रीड दैट बिकॉज लॉट ऑफ Mm. इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड एंड Economics, एवरीथिंग। yeah. सो आई लव दैट। Yeah, actually, we could. बीइंग एन एक्टर में थोड़े से वियर्ड इंटरेस्ट हैं, लोगों के होते No, नहीं है एक्टिंग, it's बट actually it's good that you have some interest, and that is uplifting your knowledge also, and that is uplifting your inner self also. Yeah. राइट। Exactly. So, when you were, telling me, कि कॉमर्स ऐसे ही ले लिया था, I कहाँ जा रहा है डायरेक्शन, I didn't know that. I was imagining the whole situation that is going on with me right now. Like, I was a commerce student, then I shifted कि अरे commerce में मेरे को college में admission नहीं लेना, I'll go with arts. Okay, and my now mom is asking, what you have to do, and I'm like, पता नहीं क्या करना है, I'll do whatever I want to, I don't know. So, that thing. ये बहुत एक इम्पोर्टेंट पड़ाव होता है अपनी जिंदगी का, जहाँ पे खुद को ही Exactly. क्वेश्चन करना होता है कि आप क्या करना चाहते हैं, किसमें आपका Mm-hmm. पैशन है। कई बार रियलाइज नहीं होता है कि मेरा मेरा तो कोई पैशन ही नहीं है, आई एम पैशनलेस पर्सन, मतलब सच अ Mm-hmm. वेस्ट आई एम ऑन दिस अर्थ, क्या करूँ मैं, मतलब चले जाता हूँ। बट दिस इज द टाइम वेयर यू हैव टू इवैल्यूएट, यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, Exactly. go deep and find your interest first। और जरूरी नहीं कि आपने अगर इंटरेस्ट फाइंड आउट कर भी लिया तो वही आपका पैशन बन जाए। वही है, तो exactly. मेरे जैसे एक्टिंग में इंटरेस्ट था, लेकिन आई वाज नॉट पैशनेट अबाउट इट। मेरा बस मेन था कि हाँ भाई मैं फेमस हो जाऊँ और पैसे छापूं, बट मेरा ये इंटरेस्ट नहीं था कि मैं उसमें एकदम अच्छा काम करूँ, अच्छी एक्टिंग करूँ। ये सब मेरा कुछ इंटरेस्ट था ही नहीं, मुझे बस वही दिखता था, फेम। जैसे सबको दिखता है ना कि फेम, हाँ फेम होना चाहिए, इज्जत होनी Mm. चाहिए। वो कब आएगा, कैसे आएगा? जब आप उस काम के बारे में आप उसको शिद्दत से, आप उसको प्यार करें, Exactly. तभी आपको लोग रिस्पेक्ट करें। तो वो चीज फाइंड आउट करना बहुत बहुत टाइम तक मैंने स्ट्रगल किया उस चीज से।
मुझे समझ ही नहीं आता मुझे करना है। मैं 70 चीजें मैंने की, ये भी कर लिया, कॉल सेंटर भी कर लिया, ये भी जॉब कर लिया, वो भी जॉब कर लिया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। पर देर आए दुरुस्त आए। Yeah, matlab, if you see yourself today, you must be satisfied with yourself. Even if you have tried so many things in the past, you have knowledge about at least those things. यस, Yeah. So you know कहीं ना जो कहीं तो बाउंड्री सेटिस्फाइड इतनी थे। होनी थी वो इतनी हो गई आपकी, because you have tried या multiple things. Yeah. मल्टीपल। So it's okay. लाइफ है Okay. वो तो, मतलब कुछ ना कुछ सिखाती ही रहती है। So yeah. Now this is a fun session type of thing now. ठीक है, कुछ भी अब ओके, सीरियस नहीं होगा, अब सब फन जोन में ही ग्रेट, चलेगा. सुपर, आई लव दैट। थैंक यू. ओके. सो when मतलब जब आप जाते हैं, when you are at airport or you are just moving outside your home, you are when you are basically राइट। outside your home, so obviously there are हाँ जी। fans. Okay. So they come to you and they say, oh Shakti, so what's the first reaction you get? Ki, are you a shy person or you are like, they are calling me? नो, आई एम शाय एक्चुअली। Most of the times I don't want to react, but yeah, I'm generous enough to give them a selfie, और शांति से मैं अपना काम करता हूँ, सेल्फी लेता हूँ, चला। Okay. So the best moment with your fan and the most weird moment with your fan. uh, the best moment, actually, whenever I'm meeting my well-wishers, I always feel happy. I feel good that, I'm being appreciated for what I've done, and people still love me for whatever I'm doing, और भले मैंने बहुत टाइम से कुछ काम नहीं किया, और people are, they have a recall value. That's a great thing for me. Or the worst moment with a fan was when I was in Indonesia. Uh, so this show called Meri Aashiki Tumse was quite famous over there, which I'd done for Colors TV. There, people used to literally mob me. मतलब वो मेरे कपड़े फाड़ देते थे। वो मतलब कभी भी कहीं पे भी मॉल में भी जाओ तो मतलब आपकी घड़ी निकालेंगे, जो भी ब्रेसलेट्स पहने हैं, वो निकालेंगे, सनग्लासेस निकालेंगे, जैकेट्स वैकेट्स निकालेंगे, मतलब लिटरली देवर क्वाइट क्या बोलते हैं, Wild. बहुत ज्यादा हार्श थे। हाँ, बहुत ही वाइल्ड। और इंडोनेशियंस को शायद दाढ़ी नहीं आती है, तो उनको बड़ा बड़ा अच्छा लगता था कि यार मुझे दाढ़ी है, तो घड़ी घड़ी मेरे फेस को हाथ लगाते थे। तो जब बॉडीगार्ड्स भी होते थे और वो लोग फेस को हाथ लगा रहे होते थे, तो always used to feel like that they're slapping me, Yeah. you know. Because it was और like एक बार this. तो ऐसा हो गया था कि मेरे साथ 10 बॉडीगार्ड्स थे। आई वाज इन अ मॉल गोइंग फॉर सम प्रमोशन, और वहां पे मतलब क्राउड अनकंट्रोलेबल हो गया था। 10 बॉडीगार्ड्स भी कुछ नहीं उखाड़ पाए, और वो मतलब उन्होंने ट्रेन जैसी बनाई थी, मुझे सेंटर में रखा था, और इतना क्राउड था कि उन्होंने बॉडीगार्ड्स को उठा के फेंक दिया, और मुझे लेके पूरा जमीन पे मेरे ऊपर आगे सारे। तो Oh आई God. फेल्ट दैट डे दैट आई एम जस्ट गोना डाई टुडे, दिस इज माय लास्ट डे ऑन अर्थ, यू नो। So it was so scary. It was so मतलब traumatizing to get out of from that place. So I think वो प्यार था उनका जो मुझसे मिलना चाहते थे, पर मेरे लिए वो इतना दर्दनाक हादसा हो गया कि मतलब मुझे डर लगने लगा कि भाई मैं ऐसे कहीं जा नहीं सकता है। आई यूज्ड टू ऑलवेज वेयर अ मास्क। तभी कोविड वोविड का कोई सिचुएशन नहीं था, बट आई यूज्ड टू ऑलवेज वेयर अ मास्क। बट इट वाज एन एक्सपीरियंस, ये I ऐसा can imagine एक्सपीरियंस that. सिर्फ बॉलीवुड, ऐसा एक्सपीरियंस सिर्फ बॉलीवुड एज सेलिब्रिटीज को ही मिलता है, जो मुझे मिला। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई फील ब्लेस्ड। I'm imagining all the situation that what you have gone through. मेरे इंस्टाग्राम पे कुछ वीडियोस पड़े हुए हैं, इफ यू गो एंड सी यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग I have stalked you yesterday only. Pura. अबाउट। अच्छा। I'm very good at that. Okay. So now एक आम आदमी के कुछ सवाल हैं, ठीक है? जब हम्म। हम लोग you know have you ever traveled in street market and शॉपिंग भी करिए तो उसमें भी बार्गेनिंग करवाइए कि नहीं भैया 300 का नहीं 200 का. हाँ, मतलब ये सब तो मैंने बहुत किया हुआ है।
अभी भी करता हूँ। अगर मास्क पहना हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ओके। पता नहीं लगता। ओके, सो डू यू फील प्राउड कि अरे मैं 500 की चीज 200 में ले आया? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, मजा तो आता ही है, उसका एक अलग डोपामिन रश मिलता है। Okay, so the next is, have you ever traveled free in train? Although you have booked all the इन bogie for ट्रेन, you, yeah, but still, हाँ हाँ I'm हाँ, asking this. फ्री में ट्रैवल तो मैंने कभी नहीं किया, मतलब ट्रेन में तो कभी फ्री में travel Okay, in bus? नहीं, मैंने फ्लाइट्स में फ्री में ट्रैवल किया है, बस में ट्रेन में कभी ट्रैवल नहीं Wow, वो मैं नहीं सोच सकती थी. Okay. किया, बिकॉज आई एम एन एक्टर, सो वी ऑटोमेटिकली बिकम इन्फ्लुएंसर्स टू, so I do go to different countries to promote their country, to promote different hotels, so for that purpose I have traveled to. Yeah. Okay, वो common people में नहीं आता है. हमें नहीं बुलाया जाता. Okay. So, okay, so uh, when you check out from your hotel room, do you take all the items with you, like coffee powder जो होता है, sugar powder, and that soap, shampoo, नहीं, body मैं नहीं lotion? करता हूँ, नहीं नहीं नहीं, नहीं करता। कभी नहीं करा? मतलब शायद बचपन में करता था मैं, लेकिन अब नहीं करता हूँ, मुझे अब फैसिनेशन नहीं नहीं है उससे। करते? ओके, अंडरस्टैंडेबल. मैं ओके, भी तो बचपन में मैंने एक आध बार कभी किया होगा, पेंसिल वेंसिल लेता था मैं, हाँ, वो तो बट काफी अच्छा. अभी तो वैसे कुछ शौक नहीं है मेरे शैम्पू के, और क्योंकि वो सारी हम्म, स्पेसिफिक चीजें होती है जो हम यूज करते हैं, तो कुछ भी दूसरी चीज यूज करना पसंद नहीं। that's understandable. Okay. और इट्स अनएथिकल आल्सो एक्चुअली, व्हिच आई रियलाइज, सो आई डोंट। Okay, I will not comment. ओके, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग हैं जो आई थिंक करते होंगे. मैं नहीं करती हूँ, प्लीज. पहले आई नो, क्लियर कर दूँ. कुछ इंडियंस इंडोनेशिया में पकड़े गए थे, बाली के होटल में। उन्होंने मतलब तो पता नहीं क्या क्या चुराया था, और उनका वीडियो पूरा वायरल भी हुआ था। नो, आई तो आई थिंक देयर थिंक आर सम इट्स अ वेरी पर्टिकुलर बैड थिंग्स थिंग टू दैट यू डू, कैन नहीं टेक. करना चाहिए सर। आई थिंक देयर आर सम पर्टिकुलर थिंग्स दैट यू कैन टेक, या लाइक आप सिर्फ वो. कॉफी सैशे या फिर टी हाँ, बैग्स, या ये सब आप ले सकते हो, है ना? वो सारी मैं वही चीजें बात आप कर ले रही हूँ, मैं सकते वो हैं, नहीं बात कर रही हूँ वो बट हाँ, आप टॉवल्स ले उनकी लिया. प्रॉपर्टीज नहीं ले सकते। एग्जैक्ट, एग्जैक्ट. हाँ, वो तो नहीं, मतलब वैसे दैट्स भी अनहाइजीन। अनएथिकल. दैट्स नॉट गुड. सो हैव यू एवर बंक योर कॉलेज? या मेनी टाइम्स, मेनी टाइम्स? पर हमारे यहाँ पे मतलब 75% अटेंडेंस कंपल्सरी था, तो Okay, you are graduated मतलब from Mumbai 75 के ऊपर University? ही रहता था मेरा। बॉम्बे, Okay, नरसिंह मॉन्जी कॉलेज, that's, yeah, I have heard this name. NM, you must have heard of Miti Bai. Mm-hmm. Okay, so most They are famous hilarious colleges of Bombay, sorry. famous college in Bombay. हाँ, मैंने बोला, मैंने सुना है ये नाम, मतलब whenever I अच्छा, there in Mumbai, so my sister always talks about this only, Narsi Munji, ये वो. मैंने हाँ ठीक हम्म, है. मैं ड्यू में हूँ. मैं उसी में इतनी खुश होती रहती. Okay, so most hilarious incident you were till asking now? me. Hilarious. Yeah. So I was shooting for this scene in सिलसिला, मतलब मैं सेट पे मतलब अपना काम करता हूँ और घर ज्यादा मतलब मैं मस्ती मजाक वगैरह सब करता हूँ, लेकिन मतलब ज्यादा नहीं करता। तो क्योंकि हमें टेलीकास्ट निकालना होता है ना, डेली का हमें निकालना होता है, तो हमें हमारे पास टाइम भी नहीं होता है, फटाफट सीन शूट करते हैं। और तो एक एक्टर थे, उनका नाम मुझे याद नहीं है, तो वो बहुत ही ज्यादा हैमिंग कर रहे थे, एक्टिंग कर रहे थे, हैमिंग इन द सेंस बहुत जो आर्टिफिशियल एक्टिंग एक्टिंग होती है उस तरीके से कर रहे थे। That I तो हमारा जो शो था बहुत रियल सब्जेक्ट के ऊपर था, और सब रियल एक्टिंग कर रहे थे, कोई एक्टिंग एक्टिंग जैसा नहीं था। तो वो इतना ज्यादा हैम कर रहे थे कि इतना ज्यादा हैम कर रहे थे वो कि मतलब आई कुडंट स्टॉप माय लाफ्टर। तो ड्यूरिंग द सीन, ड्यूरिंग द शॉट इटसेल्फ, आई वाज लाफिंग एट हिज फेस। तो मेरे डायरेक्टर भी सोचने लग गया कि यार ये तो कभी ऐसा हंसता नहीं है, क्या पागलों की तरह हंस रहा है, क्या हो गया इसको?
और मतलब मुझे मतलब ऐसा बाउट आ गया था लाफ्टर का कि मतलब मैं उनकी शक्ल देख रहा हूँ तो मुझे हंसी आ रही। और वो काफी फेमस एक्टर है वो। थैंकफुली मुझे उनका नाम भी याद नहीं है, बहुत अच्छी बात है। बट वो काफी फेमस एक्टर है वो। और उनके मुंह पे ही हंस रहा था मैं। मतलब इट वाज वेरी इंसल्टिंग फॉर हिम। एंड सरप्राइजिंगली नॉट ओनली मी, मोस्ट ऑफ द सेट मेंबर्स वर आल्सो लाफिंग एट द वे ही वाज एक्टिंग। तो मतलब मैं तो मतलब कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। मैं हंस हंस के पागल हो गया। मेरे डायरेक्टर भी मतलब उसको भी समझ में आ गया कि ये एक्चुअल में इसको बाउट आया है, मतलब इसको भी नहीं रोक सकते हैं, तो इसको माफ कर देते हैं। तुम जाओ थोड़ा शांत होके आओ। फिर मैं थोड़ा शांत होके आया, फिर मैंने उसे देखा, फिर मैंने हंसना शुरू कर। मतलब इट वाज माय डे, लाइक मतलब मुझे बहुत मजा आया उस आदमी से मिलके। तो मतलब कभी रास्ते में भी मुझे दिख जाता है, अरे सर, मैं इतना खुश हो जाता हूँ उसको देख के कि उस बंदे ने मुझे इतना हंसाया अननोइंगली, उसको पता भी नहीं है। बट मुझे बहुत मजा Okay. आया। सो दैट वाज माय हिलेरियस मोमेंट। Okay. So now, most embarrassing moment. एम्बैरेसिंग। मतलब होता है ना, वो कुछ कर दिया बट बाद में रियलाइज होता है, अरे ये क्या कर दिया यार, शिट। मैंने पहले बहुत करता था। जब व्हाट्सएप नया नया आया था, तब किसी को मैसेज करने और किसी को मैसेज कर दिया, दैट गलती इज से सो कुछ गलत बैड। फॉरवर्ड्स भेज दिए। तो ऐसे मैंने बहुत किए हुए हैं, तो वो बहुत एम्बैरेसिंग हो जाता है कई बार। और वो टाइम पे डिलीट का ऑप्शन नहीं था, एक बार भेज दिया तो भेज दिया। भेज दिया राइट। तो सो यू नो अ स्वीट एंड कुछ अच्छा सा मैसेज फॉर ऑल योर फैंस। ओके। सो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि थैंक यू सो मच फॉर sharing so much of love, adulation and so much of support. Thanks for always being there. और ये जो इश्क निभावा सॉन्ग है, प्लीज यूट्यूब पर जाकर देखिए, अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो। एंड आई एम श्योर अगर आप देखेंगे तो यू विल लव द सॉन्ग। एंड डू लेट मी नो हाउ डू यू फील अबाउट द सॉन्ग। थैंक यू सो मच एंड लव यू गाइस। Okay, so one message for the Delhi University students and DUIs, obviously. Delhi And for University and me, DU if you same, think. right? So, well, for Delhi University people, thank you so much for watching this video. And if you haven't, seen the song yet, please go to the YouTube channel and like, share, and subscribe, and watch the video. And do let me know, DM me, or write it on the YouTube comment section. Tell me how do you feel about the song. And thank you so much for having me here. Paridhi, you are the great host. Although you are studying right now, but you're doing a great job. So well done with that. Thank you. And thanks for having me here. Yeah, okay.